Hello students, good morning all of you. मैं गौरी शंकर बैठा. Today I will teach you about the chapter number 4, climate in geography. And today is my 39th online lecture video class. In the previous class, I told you about the climatic controls. There are 6 major controls which I told you in the previous class. And today I will teach you about the factors affecting India's climate. What are the factors that affect the India's climate? Now, first one is latitude. Just a minute, wait for. The first one is latitude. There are three mainly factors that affect the India's climate. That is latitude, altitude, and pressure and winds. Now see, latitude means Akshans. As we know that the latitudinal line, Tropic of Cancer, divide India into two equal halves. I told you in the first chapter. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Rann of Kutch in Gujarat to the west to the Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer, that is belong to the tropical area. It means in the half of the Tropic of Cancer in the south, that is tropical area, and in the north, that is subtropical region. All the remaining north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of the tropical as well as subtropical climates. जैसे बच्चों ने बताया आपको कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा से कहते हैं हम लोग, उसके दक्षिणी भाग में जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल है. ना इस क्षेत्र में अधिक गर्मियों में गर्मी होती है, ना अधिक ठंडी होती है. ठीक उसका उल्टा सब ट्रॉपिकल में जो भारत के उत्तर की ओर है, वहाँ गर्मियों में गर्मी और ठंडियों में कड़ाके ठंडी पड़ती है और वर्षा भी होती है अत्यधिक. नेक्स्ट पॉइंट इज altitude. India has mountain to the north, that is the Himalaya mountain, which have an average height of 6,000 meter. India also have a vast coastal areas where the maximum elevation is about 30 meter. भारत दक्षिणी भाग में जो भी तटीय इलाके हैं जिनकी समुद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर है, और जो नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है उसकी औसत जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है. वहाँ कहा गया है द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. मैं पहले बताया था हिमालय हमारा प्रहरी कार्य करता है, वही है. द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स from the Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that is a subcontinent experiences comfortably milder winter as compared to Central Asia. Central Asia अपेक्षा यहाँ पे उसकी अपेक्षा यहाँ पे ठंड कम पड़ती है. यदि हिमालय नहीं होता तो हमारे कड़ाके ठंड से बहुत से लोग मर जाते और जान माल की क्षति भी होती. Now, third factor is pressure and winds. The climate
and associated with the condition in India are governed by the following atmospheric condition. जो वायुमंडलीय स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है. That is the pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones. These all affect the present winds of our country. Now India's lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force. I will tell you about the Coriolis force. And this Coriolis force move towards the equatorial low pressure. Listen again. I told you that India lies in the region of northeasterly winds. उत्तर पूर्वी जो पवन बहती है उस क्षेत्र में हमारा भारत बसा हुआ है. और ये हवा की उत्पत्ति जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, हमारा हिमालय रीजन है, वहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट जो नॉर्दर्न एरिया में होता है वहाँ से शुरुआत होती है. फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो टुवर्ड्स द साउथ. वहाँ से हवा नीचे की ओर आती है एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड. जब नीचे की ओर आती है तो राइट टर्न करती है. राइट टर्न किसकी वजह से करती है? दैट इज द रीजन ऑफ द कोरोलियस फोर्स. एंड दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर. और विषुवतीय जहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है उस ओर अधिक भागते हैं. हम जानते हैं कि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को बढ़ता है. कभी भी एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. नाउ सी व्हाट इज कोरोलियस फोर्स. Listen carefully. Coriolis force, that is an apparent force caused by the earth rotation. ये पृथ्वी के परिक्रमा से उत्पन्न होता है. The Coriolis force is also responsible for deflecting winds towards the right in the nomosphere. यदि ये हवा Coriolis force जो है पृथ्वी घूर्णन से यदि राइट की ओर बहती है तो राइट घूमने का मतलब है नॉर्थ की ओर टर्न करेगी. तो यदि लेफ्ट की ओर घूम के आती है तो साउथ की ओर, साउथ हेमिस्फीयर की ओर टर्न करती है. ओके, लिसन अगेन. दिस कोरियोलिस फोर्स, इफ इट इज टर्न टू राइट इट गोज टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इफ इट गोज टू लेफ्ट इट देन गो टू साउदर्न हेमिस्फीयर. इट इज इट्स फेनोमेनन. दिस इज नोन एज Coriolis force and it is also known as Farrell's law. इसी को हम लोग Coriolis force को Farrell's law के नाम से भी जाना जाता है. Now see, generally these winds carry little moisture as they originate and blow over land. जब ये धरती की ओर आती है तो अपने साथ कुछ नमी लेके आती है. And they also bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. कहीं कहीं बताया जाता है कि भारत में ऐसी भी भूमि है जहाँ पे एरिड है, शुष्क इलाके हैं. Now next is the pressure and the wind condition over the India are unique. जो भारत की जो वायुदाब और हवा की स्थिति है ये लगभग एक यूनिक है, बिल्कुल सबसे अलग है. ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. ठंडी के समय में नॉर्थ हिमालय की ओर या नॉर्थ इंडिया की ओर प्रेशर हाई रहता है क्योंकि वहाँ पे नमी अधिक होने के कारण प्रेशर हाई होता है. इन विंटर देयर कोल्ड ड्राई विंड्स blows from this region to the low pressure area.
नॉर्थ से साउथ की ओर ये हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है नॉर्थ से साउथ की ओर. इट मीन्स इट ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. ओवर द ओशंस टू द साउथ. इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया. गर्मियों में ठीक यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है और साउथ में हाई प्रेशर हो जाता है. दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर. हवा के ऐसे मानसून जैसे हमारा चलता है उसी अनुसार ये प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है. एयर मूव्स from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinents. These are known as southwest monsoon wind. इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून हवा कहते हैं. ये इंडियन ओशन की ओर से साउथ की ओर से फिर से जब हवा आती है ये घूमती हुई साउथ ईस्टर्ली की डायरेक्शन करके राइट टर्न करके और हमारे लो प्रेशर की ओर चलती है ये गर्मियों में. उस समय उत्तरी भारत में लो प्रेशर होता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में चारों ओर फैलती रहती है. तो ये कौन सी हवा होती है? इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर, नमी इकट्ठा करके लेते आती है समुद्र की ओर से, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेन ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया. और जब दक्षिण की ओर से साउथ वेस्ट मानसून विंड चलती है, अपने नमी लेके चलती है, पानी लेके चलती है और हल्की इधर उधर छींटे वर्षा करती हुई आती है. स्टूडेंट्स, इट इज अप टू ओवर टुडे. नेक्स्ट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द जेट स्ट्रिप्स. ओके, थैंक यू.